जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैनू गुरु जी दे रोज़ मैसेज आ रहे सी, कुड़िए शुकराना कर, तू शुकराना क्यों नहीं करदी, तू मेरी गल क्यों नहीं सुनदी। ते संगत जी हुण गुरु जी की किरपा नाल मैं हुण शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ। तो संगत जी, मैनू गुरु जी का मैसेज आ रहा सी कि मैं तेरे घरे अज रोटी खाण आऊँगा, तू मैनू पहचान लई। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਤਾਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੇਬਰ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅੱਜ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੰਟੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ, 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਲ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੱਪ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी आपने जो सत्संग सुना बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का। गुरु जी के जो भी मैसेज हमें आते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड होते हैं। हर सत्संग में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है संगत जी। इसीलिए हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। संगत जी, हो सकता है कि उस सत्संग में हमारे लिए कोई मैसेज ना हो, लेकिन क्या पता गुरु जी हमें वो सत्संग सुनाकर हमारा कोई आने वाला कष्ट कटवा रहे हों। इसलिए हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। और फिर संगत जी, गुरु जी ने भी तो कहा है कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ने हमें जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरी आप जी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सत्संग सुनकर उसे लाइक भी किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो।
संगत जी, जो भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, दूसरों को सुनाता है और दूसरों के सत्संग को सुनता है, गुरुजी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए हमें सत्संग को ना तो कभी इग्नोर करना चाहिए और ना ही हमें जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उनको भी हमें छुपा के नहीं रखना है अपने तक, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संगत को बताना है ताकि हमारा गुरु परिवार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा संगत का भला हो। संगत जी, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है साधु की सीख। किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता था तो बारिश होती थी, अतः गांव वालों के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वह उस साधु के पास जाते और उसे नाचने का अनुरोध करते, और जब वो नाचने लगता तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई और फिर जब लड़कों ने नाचना शुरू किया तो आधे घंटे के बीतने से ही पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने जब नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीते लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु ने रुकने का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तभी बादलों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? तो साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो वो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात ये, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो। तो दोस्तों, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वो तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। संगत जी, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आगे से भी आप कोई ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अब बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।